Well, good morning to one and all present here. My name is Mohit Kishore Vats, and I am an assistant professor at DME Media School. And I welcome everyone to this session orientation program, SOP 2020. Well, in today's orientation session, we are going to talk about basics of video camera, lights and sound as a subject, and we are going to focus upon the aspects of documentary filmmaking. But before that, let me give you all a brief about DME. Delhi Metropolitan Education, DME, is a premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by Bar Council of India. DME provides first-rate infrastructure with strong academic facilities to render a dynamic grounding for success. It has 3 schools which has 4 academic programs, and these are the first school is DME Law School, which has 2 programs, the integrated BA LLB, and the other one is BBA LLB. We also have the DME Media School, which is organizing this special webinar on the session as part of the session orientation program on basics of video camera, lights and sound. And we offer a program that is a Bachelor of Arts in Journalism and Mass Communication. The third school of DME is DME Management School, which offers Bachelors in Business Administration. Well, DME's sister college, Delhi Technical Campus, is at Greater Noida, which provides the most sought-after programs, which is affiliated also to Guru Gobind Singh Indraprasth University and is approved by All India Council for Technical Education, that is AICTE. The institute imparts technical education in the fields of engineering, architecture, hotel management, and MBA. Well, now talking about DME Media School, DME Media School is one of the top media schools in the country, which focuses on the growth of faculty and students through academic and co-curricular activities. And some of the activities undertaken by the school are, recently we hosted the world's first 10-day digital live international conference, that is Issues of Community, Agenda and News, ICANN 3. The hashtag was Conference for Change. It was hosted by DME Media School and in collaboration with Deakin University, Melbourne, Australia. Our knowledge partners were Adamas University, Kolkata, KR Mangalam University, Gurugram, and Public Relations Society of India, PRSI chapter of Delhi from 21st June to 30th June 2020. And this was the 3rd edition of ICANN. Other than this, we have also organized Cineeste International Film Festival, that is CIFI, in 2019, which was also organized in collaboration with Deakin University, Australia, Melbourne, on April 17 to April 20 in 2019. Other than that, we have also organized 2 previous editions of ICANN that is based on other aspects of India and changing aspects of news and Indian cinema and alternate networks. Other than this, we have also organized BG Varghese lecture series, which is organized every month with eminent media personalities and experts delivering special lectures on issues related to media and other subjects of contemporary values. Now, talking about the lockdown saga, during the lockdown, we at DME Media School, we kept on producing video lectures for the students, and we also kept on organizing webinars with special focus on the subjects which we are teaching in the undergraduate program, that is BAJMC. We had organized more than 30 webinars on various aspects like constitutional values, like cyber security, and to name a few. Then other than that, we have also organized a special webinar series called Media Master, wherein we cater to the prospective media students as well as students of our school. And recently we have begun with another webinar series that is focusing on the aspects of students, wherein the dean talks with the students in an informal manner, that is known as face-to-face. And we have been conducting this through our webinar series. So let's now take a virtual tour of DME's campus. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a 2-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching. Wherein
the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. Well, thank you very much for that video. So today we are going to discuss and deliberate upon documentary filmmaking as part of the subject orientation of basics of video camera lights and sound. That is the subject which is taught in the third semester. The paper code is BAJMC 205. And we have a very distinguished expert amongst us to take this session. He is Mr. Pankaj Saxena. So before we proceed to the session, let me apprise everyone about our expert. Mr. Pankaj Saxena is a filmmaker, media consultant, cinema academic, and writer. A graduate in film editing and postgraduate in film direction from the Film and Television Institute of India, FTII Pune, Pankaj has written, edited, directed, and produced over 100 documentaries, short fiction films, television programs, public service advertisements, and news stories. In a professional career spanning over 3 decades, Mr. Pankaj has held senior management positions, including those of Vice President at Discovery Channel and Head of Programming at BBC Worldwide Channels. In course of his filmmaking and television programming assignments, Mr. Pankaj has extensively traveled the globe, been a regular at MIPCOM at Cannes, BBC Showcase at Brighton, Liverpool, and Real Screen Summit at Washington, DC. All through his professional career, Mr. Pankaj has been taking time off to teach cinema, television, mass media, and writing at institutions as diverse as FTII Pune, Asian College of Journalism Chennai, KIIT University Bhubaneswar, APJ Institute of Mass Communication New Delhi, Indraprasth University Delhi, Rama Naidu Film School Hyderabad, and many more. He is also a published writer and serves on the jury of several prestigious film festivals. We welcome you to the session, sir. Thank you very much. So before we actually begin with the session, I would also like to welcome Professor Dr. Ambrish Saxena, the Dean of DME Media School, and Professor Dr. Sushmita Bala, Head DME Media School. Thank you. So, sir, I would request our Dean, Professor Dr. Ambrish Saxena, to kindly share his views on this session. I think we are already late. The only thing which I would like to say at the outset of the session and that I want to welcome Mr. Pankaj Saxena. He is such a great personality in the field of cinema and films, and he has worked so tremendously and he has contributed so immensely that it's a great privilege that he has agreed to be in this session and to talk to the students. So I'm of the firm belief that in today's session, the students will be benefited a lot. And without wasting any time, I think let us enjoy, let us relish what Mr. Pankaj Saxena is going to offer in this session. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Dr. Saxena, thank you very much for inviting me to this session. And Mohit, thank you very much for a very kind introduction. And I'm very pleased to meet Sushmita Balaji from DME as well. Now, the first question is, am I able to see the students or it is fine? Because I can't see any students' faces right now. Sir, their cameras are off, but they are listening to you, sir. All right. Okay. So I think this is what I want to say to the students in the very beginning, that even though this is an online session and you are not in college in front of the teacher, it is a good idea to keep a pen and paper with you. I'm saying this because I do not think we will be able to cover everything about documentary in this 1.5 hours, 1 hour that we have. And this education must continue. तो आपको थोड़े से notes लेने चाहिए, क्योंकि जिन फिल्मों का मैं जिक्र कर रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, वो आपको कभी किसी मौके पे देखनी चाहिए. तब आपको बात जो है वो ज़्यादा समझ में आएगी. So rather than just do a one-off session and then forget about it, I think you continue your engagement. That is my first advice to you.
मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ शुरू में कि क्यों हमको लगता है, हम सब लोगों को मिलके लगता है कि एक डॉक्यूमेंट्री का सेशन होना जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। और मैं इसको कैसे कह रहा हूँ, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक ट्रेंड फिल्म मेकर था और मैं बिल्कुल विली नीली मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में आया था, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि क्योंकि न्यूज़ हो रही है, क्योंकि न्यूज़ स्टोरीज हो रही हैं, तो अगर आपको समय मिलता है तो क्या आप न्यूज़ स्टोरीज करना चाहेंगे। तो मैं ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं ट्रेंड फिल्म मेकर हूँ, लेकिन मैंने बड़े शौक से, बड़ी खुशी से, मुझे लगा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूज़ स्टोरीज को करने के लिए। तो मैंने बड़े करीब से देखा है कि डॉक्यूमेंट्री और न्यूज़ स्टोरीज में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस भी हैं। मुझे लगता है जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को एक वजह से डॉक्यूमेंट्री में एंगेज इसलिए करना चाहिए कि वो आपकी रिसर्च का बड़ा हिस्सा है। अगर आपको कहीं कोई स्टोरी, कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको इसके ऊपर एक स्टोरी करनी है, तो आप किताबें उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन सिनेमा एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अभी आपको कहे, हालांकि इसके बारे में तो सब लोग ज़्यादा जानते हैं, मगर सपोज यू आर आस्क्ड टू सडनली डू अ स्टोरी ऑन राम जन्मभूमि, there are 4 or 5 films that you should be able to see in about 2 hours time that will give you a fantastic perspective on what this thing is. या कोई और ऐसी आप चीज़ ले लीजिए जिसके बारे में हमारी जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं है। आप कोरोना वायरस को ले लीजिए, आपको कोई कहे कि जी कोरोना वायरस पे स्टोरी कर दो, आपने इस पे कोई पढ़ाई, कोई रिसर्च नहीं की, आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख लेंगे, वो आपके लिए अच्छा रिसोर्स मटेरियल है। ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लाइब्रेरीज भी हैं, वो सब है। बट डॉक्यूमेंट्री इज ऑलवेज अ गुड रिसोर्स फॉर अ जर्नलिस्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की बुनियाद जो है ना, वो फैक्ट्स पे रखी होती है। दूसरी बात यह है, और वो उससे भी बड़ी बात है, कि एज अ जर्नलिस्ट कभी आपको लगता है कि स्टोरी बहुत छोटी है, मैं इससे भी ज़्यादा कहना चाहता हूँ, मैं स्टोरी में नहीं कह पा रहा हूँ। न्यूज़पेपर में हम समझ लीजिए कि 6 कॉलम इंच की स्पेस आपके पास अवेलेबल है, और अगर टीवी है तो 20 मिनट का प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है, आपको या 20 मिनट का बुलेटिन आपके पास अवेलेबल है। तो कभी आपको लगता है कि नहीं, मैं ज़्यादा इसमें ज़्यादा गहराई से जाना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ कहने के लिए है। तो जर्नलिस्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, ये कोई अजूबे की बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज मेरे विचार से जर्नलिस्ट ने बनाई है। और आप कभी भी बीबीसी देखेंगे या हिंदुस्तान में एनडीटीवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जर्नलिस्ट ने कमाल कर दिया। उनकी स्टोरी 3 मिनट की थी, समझिए ग्लोबल वार्मिंग पे कोई कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, एक स्टोरी बीबीसी ने बनाई 3 मिनट की, लेकिन जर्नलिस्ट को लगा कि मैं तो इसके अलावा बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए। सो ही वुड देन से कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, एंड बीबीसी एनकरेजेस दैट। वो कहती है ठीक है आप जरूर बनाइए, और उनकी वो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी पे आप देख भी सकते हैं। तो वो बात है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने पिछली पूरी फिल्म, फुल फिल्म, आजकल क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो हम लोग आधी फिल्म भी देखते हैं, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। आप घुस गए थिएटर में तो लाजमी है कि पूरी देखनी पड़ेगी। अब पॉसिबल है कि आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप एक जो कागज पेंसिल मैंने आपको कहा था, उस पर आप लिखें आपने पिछली कंप्लीट फिल्म कौन सी देखी। मैं आपको लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा फोकस बने। तो आप एक लिख लीजिए कि मैंने पिछली कंप्लीट फिल्म कौन सी देखी। वो आपने कहाँ देखी है उससे मतलब नहीं, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, लास्ट फिल्म दैट यू सॉ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप जरा ध्यान से देखिए उस फिल्म को, और उस फिल्म के बारे में मैं यहाँ से बैठ के, अभी तो मैं आपकी नोटबुक या आपका चेहरा भी नहीं देख रहा हूँ, वो 99.99% एक फीचर फिल्म है जो आपने लिखी है कि आपने देखी है। 0.01% पॉसिबिलिटी है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी, आपने देखी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी कॉन्शियस में डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा है नहीं, हमारी कॉन्शियस में फिल्म का मतलब फीचर फिल्म होता है। फिल्में बहुत सारी होती हैं, डॉक्यूमेंट्री भी होती हैं। तो मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट इनवाइट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्री के साथ थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाने की, और ये सेशन जो है ये उसके उस पर्पज़ के लिए है। अब अच्छा, मुझे ये सेशन करने में अच्छा क्यों लगता है और मज़ा क्यों आता है, वो उसकी पहली वजह तो ये है कि मैं जो हूँ एक डॉक्यूमेंट्री देखने वाला इंसान। मैंने असल में फिल्म इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन किया था कि मैंने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका नाम है अ डे विद द बिल्डर्स, फिल्म्स डिवीजन ने बनाई थी, पॉलस चिरकंडन ने डायरेक्ट की थी। पॉलस चिरकंडम के बारे में जब मैंने पता किया तो पता लगा वो FTI ग्रेजुएट है, तो मैंने बोला ये जगह ठीक होगी, यहाँ जाना चाहिए। तो मेरा सिनेमा से जो शुरुआती ताल्लुक ही डॉक्यूमेंट्री से हुआ है, ना कि फीचर फिल्म से हुआ है। तो मैं और आज तक डॉक्यूमेंट्री का स्टूडेंट हूँ। कभी कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री आती है तो मैं उसको आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई सी दैट डॉक्यूमेंट्री। दूसरी बात है कि मुझे मौका मिला, circumstances have been kind that I was able to make a few documentaries.
So I am not only a documentary viewer, but I am also a documentary filmmaker. और इसका जो तीसरा आयाम है, जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है या उपलब्ध होता है, is to be a commissioning editor for perhaps the best documentary channel in the whole world, which is Discovery Channel. तो जब आप डॉक्यूमेंट्री बनवाते हैं तो जिम्मेदारी आपकी और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर तो आप बना सकते हैं, आपके कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है तो आप लोकेशन पे नहीं हो सकते. तो देन द वे ऑफ ensuring that the right film is made in the right amount of time within the right amount of budget assumes great significance, and in that position you can actually propagate documentaries. और सिर्फ मैं ही नहीं, हम वो सारे लोग जो डिस्कवरी की ओरिजिनल टीम का हिस्सा थे. ये चैनल हिंदुस्तान में 1995 में आया था और आज तो पूरी दुनिया में मशहूर है और प्रेडोमिनेंट चैनल है. तो किसी ने इसको कोई चांस नहीं दिया था. लोगों ने कहा था डॉक्यूमेंट्री टीवी पे कोई नहीं देखेगा, जब सिनेमा हॉल में ही नहीं देखते तो टीवी पे क्या देखेंगे. सो देयर इज नो होप इन हेल फॉर डिस्कवरी चैनल. और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अमेरिका की बात भी. लोगों ने कहा कि टीवी तो होता है टीवी सीरियल देखने के लिए, म्यूजिक देखने के लिए और स्पोर्ट्स देखने के लिए और न्यूज़ देखने के लिए, 4 चीज़ें. डॉक्यूमेंट्री का ये माध्यम ही नहीं है. बट टुडे यू नो दैट it's a mega brand, the Discovery Channel, and not only Discovery Channel but various other channels as well. तो इसकी पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं. आपको पता है कि ऑस्कर में हर साल 2 डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड दिए जाते हैं, एक लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट्री और एक शॉर्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट्री. हम नेक्स्ट फिल्म का मैं आई एम सजेस्टिंग, एक फिल्म मुझे आपको और दिखानी है, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि उस फिल्म का नाम जो है जू है. इट इज़ मेड बाय अ डायरेक्टर कॉल्ड बर्ट हांस्ट्रा, BERTHAANSTRA. तो हम जब वहाँ पे जाएंगे मोहित जी, मुझे लगता है यहाँ से प्ले करने के बजाय स्टूडेंट्स को अपने आप प्ले करके देख सकते हैं अपने एंड पे. तो उनको पिक्सेलेशन नहीं मिलेगा देखने के लिए. वो 11 मिनट की फिल्म है. वो हमको वैसे पूरी देखनी चाहिए बिकॉज वो हाफ ऑफ इट विल नॉट मेक सेंस. सो आई विल अगेन रिपीट दिस कि आपको स्टूडेंट्स को क्या देखनी चाहिए फिल्म. बट एनी हाउ आपने ये फिल्म देख ली और पिक्सेलेशन के बावजूद आई थिंक यू गेट एन आइडिया कि ये हो क्या रहा था, ये फिल्म थी किस बारे में और इसमें क्या हो रहा था. So there are if I was in the class physically with you, I would ask you, but वो अभी गुंजाइश नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है. तो मैं रिकैप कर देता हूँ कुछ चीज़ें इस फिल्म के बारे में. कि एक तो ये फिल्म जो थी ये 1967 में जिनकी उम्र 20 साल थी, उन बच्चों के इंटरव्यूज के ऊपर आधारित थी. उनका क्या ख्याल है, तो हम देख रहे थे. और वो बच्चे जो थे वो मतलब मुख्तलिफ हलकों से थे. दे वर फ्रॉम, ऐसा तो कोई नहीं ना जिसको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, बिकॉज आई एम एंडिंग अप टॉकिंग मोर इन. नहीं सर, बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं, आप प्लीज बोलिए सर. अच्छा ठीक है, बढ़िया सर, थैंक यू. तो ये जो थे ना, ये डाइवर्स बैकग्राउंड से थे बच्चे. इसमें कोई गांव से थे, कोई शहर से थे, कोई आदमी था, कोई औरत थी, कोई पढ़ा लिखा था, कोई बेपढ़ा लिखा था. अलग अलग they were representative of the Indian society in the year 1967. तो एक तो ये चीज़ है. और हमने इसमें पाया कि कुछ बच्चे जो थे, these 20-year-olds are more optimistic about things, and there were some who were not so optimistic or maybe even pessimistic about things. तो ये एक बड़ा डिफरेंस इन दो में हम कह सकते हैं था. और तीसरी बात जो थी, जो टोटल यूनिफॉर्मिटी थी, that everybody was concerning with the future. सब लोगों की कुछ फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में, मेरी कहाँ नौकरी लगेगी, मेरी कहाँ शादी होगी, मैं क्या प्रोफेशन लूँगा, ये इसके बारे में. तो 20 साल के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. वो आगे के बारे में सोचते हैं क्योंकि उनके पीछे ज़्यादा कुछ होता नहीं है और आगे बहुत कुछ होता है. और हमारे जैसे जो लोग हैं जिनके पीछे बहुत कुछ होता है और आगे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो ऐसी बातें नहीं करेंगे. वो ज़्यादा एनालिसिस करेंगे. आप कभी भी गौर कर लीजिएगा, एल्डरली पीपल दे एनालाइज मोर and don't look forward too much. मतलब मुझसे वाकई, now that I'm 60, if you tell me कि 30 साल बाद एक यमुना पे ब्रिज बनने जा रहा है, I really don't even read that news story. क्योंकि 30 साल बाद ब्रिज बने नहीं बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. So therefore that is generally what the film was. अभी हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्री की थोड़ी सी गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो और कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तो कोई, इस पे तो कोई बहस है नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्री है कि डॉक्यूमेंट्री है नहीं. एवरीबडी विल एग्री दैट दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री. बट क्या चीज़ है जो इसको डॉक्यूमेंट्री बना रही है, ये सवाल आपसे मुझे पूछना है और आपको अपने आप से पूछना है कि ये क्या है कि हम इसको ये लेबल कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री है. तो मुझे लगता है कि उसकी लेबलिंग का एक
मुख्य कारण ये है कि ये सब रियल है, ये प्रतीत तो रियल ही हो रहा है। ये जो इंसान हैं या जो लोग हैं ये रियल लोग हैं, ये एक्टर्स नहीं है, ये किसी के डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, जो इनके मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, पहली चीज़। तो ये रियल पीपल है। दूसरी चीज़ कि ये रियल प्लेसेस में है। स्टूडेंट है तो अपने कॉलेज में है, किसान है तो अपने खेत में है, एयरफोर्स का वो कोई ऑफिसर है तो वो अपने मेस में है या अपने इंस्टॉलेशन में है या अपने एस्टेब्लिशमेंट में है। तो द प्लेसेस आर वेरी वेल डिफाइंड इन दिस, देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर आर नो सेट्स। और तीसरी बात जो है, ये टाइम बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है, ये 1967 की बात हो रही है, इज नॉट अनडिफाइंड टाइम, एक समय की बात है, ऐसा नहीं है, ये 1967 की है। तो ये तीन चीजें अगर हम गौर करें, रियल पीपल, रियल प्लेस, रियल टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि रियल पीपल, रियल प्लेस, रियल टाइम इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री। अगर ये रियल नहीं होगा तो शायद ये डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी। मोटा मोटी इस बात पर ज्यादातर लोग विल एग्री। बट दैट विल बेग द क्वेश्चन, if merely the satisfaction of these three conditions qualifies something to be a documentary. क्या वो हर फिल्म जो रियल पीपल, रियल प्लेस, रियल टाइम पे आधारित है, क्या वो डॉक्यूमेंट्री है? और उसका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप कोई न्यूज़ स्टोरी देखेंगे, जैसे कि भूमि पूजन हुआ, उसको ले लीजिए, तो रियल पीपल, रियल प्लेस, रियल टाइम है, लेकिन जो आप देख रहे थे उसको आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बोल रहे, उसको आप लाइव टेलीकास्ट बोल रहे हैं। उसको कोई नहीं कह रहा कि आज एक डॉक्यूमेंट्री आएगी जिसमें मोदी जी पूजा करेंगे, आप करेंगे लाइव टेलीकास्ट आएगा। तो ये कहना कि वो हर चीज जिसमें रियल पीपल, रियल प्लेस, रियल टाइम है वो डॉक्यूमेंट्री है, ये बात भी ठीक नहीं है। सीसीटीवी फुटेज इसका दूसरा उदाहरण है, सब रियल है उसके अंदर, मगर हम सीसीटीवी फुटेज को डॉक्यूमेंट्री तो नहीं कह सकते। और दूसरी चीजें हैं, एजुकेशनल फिल्म है वगैरह वगैरह, इनके सबके अलग अलग टाइटल है और अलग अलग लेबल्स और अलग अलग नाम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले ये समझने की कि डॉक्यूमेंट्री क्या चीज़ है, कि सिर्फ रियलिटी होना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या चीज़ें होनी चाहिए? उस पर मैं आना चाह रहा था। और उसमें जब हम रियलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम, असल में समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। अभी आप लोग इसको शायद पहले से मानते हो, और अगर नहीं मानते हो तो आपको शायद हो सकता है कि ये लगे कि रियलिटी होती है, उसमें क्या मतलब कन्फ्यूजन की गुंजाइश कहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि रियलिटी को लेकर के कन्फ्यूजन की गुंजाइश बहुत बड़ी है और बहुत पहले से है। वो मतलब इतनी ज़्यादा है कि उसको हमारे पुराणों में माया बोला गया है। मतलब ये कहा गया है कि जो रियलिटी आप देख रहे हैं वो सारी की सारी अनरियल है। तो लेकिन वो बहुत हाई फिलॉसफी है, उसमें अभी जाने का मौका नहीं है। बट रियलिटी जो है वो अलग लोगों के लिए अलग रियलिटी होती है। अब एक कहानी बचपन में मैंने सुनी थी, आपने भी शायद सुनी होगी। वो कहानी ये थी कि एक किसान था, उसकी दो बेटियां थी। एक बेटी की शादी किसान से हुई थी और एक बेटी की शादी कुम्हार से हुई थी। तो जब बारिश पड़ी तो किसान बड़ा खुश हुआ, उसने बोला कि मेरी बड़ी बेटी तो बहुत खुश होगी, अब उनकी फसल अच्छी होगी। लेकिन उसका ख्याल आया कि मेरी छोटी बेटी का क्या होगा, वो तो कुम्हार के सारे घड़े जो हैं मिट्टी में धुल जाएंगे, तो उनके लिए तो ये तबाही और बर्बादी। तो अब वो किसान समझ नहीं पा रहा कि जो बारिश तो एक ही चीज है, बारिश रियलिटी है, मगर वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, वो उसमें भेद है। तो रियलिटी जो है वो कुछ फिक्स्ड रियलिटी है नहीं उसमें। अब जैसे मैं और आप अगर आमने सामने बैठे हों, तो मैं जो रियलिटी देख रहा हूँ वो आपका चेहरा है, और आप जो रियलिटी देख रहे हैं वो मेरा चेहरा है। मैं अपना चेहरा देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ उसमें मैं हूं नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पर्सपेक्टिव है या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रियलिटी को काफी हद तक डिटरमिन कर रहा है। आप कभी सोचते हैं कि बारिश को ही ले लीजिए, कभी आप सोचते हैं बारिश आ गई, मौसम कितना अच्छा हो गया। कोई कह सकता है मौसम कितना अच्छा हो गया, वो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि यार ये क्या हो गया, ये बारिश आ गई, अब तो जाम लग जाएंगे। और हम लोग कई बार ये कर चुके कि दफ्तर 5 बजे अगर बारिश पड़ना शुरू होती है दिल्ली में, तो आप सोचते हो यार ये क्या आफत आ गई, अब तो जाम लग जाएंगे। ये मूड पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। बकरे को काट के खा जाना वेजिटेरियन के लिए तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो बहुत बुरी रियलिटी है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए इससे बढ़िया रियलिटी कुछ नहीं है कि एक मटन बिरयानी मिल जाए उसको। तो ये जो है ना, ये यहाँ से कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है कि रियलिटी है क्या।
अब सिनेमा में रियलिटी क्या है, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं इसलिए थोड़ा सा आपको जल्दी से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि सिनेमा में रियलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग है, और आप सबको ये बहुत आसानी से, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो समझ नहीं आएगी। एक फिल्मों का लेवल है जिसको हम फैंटेसी कहते हैं, फैंटेसी फिल्म्स। ये सुपरमैन की फिल्म है, इसमें एक आदमी हवा में उड़ता है, ये रियलिटी नहीं है, कोई आदमी हवा में नहीं उड़ सकता, मगर ये एक फिल्म है, और जब हम बैठ के वो फिल्म देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, ऐसा आदमी भी होता है जो हवा में उड़ता है। या कोई और फैंटेसी हो सकती है, टॉम एंड जेरी हो सकती है कि वो उसके सिर पे हथौड़ा मार दे, उसका पोस्टर बन जाए और उसके बाद वो फिर उठ के खड़ा हो जाए, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो ये है हमारे यहाँ पंचतंत्र का जो पूरा साहित्य है वो पूरा की पूरा जो है वो फैंटेसी है। कभी जानवर बोल सकते हैं क्या? जानवर तो नहीं बोल सकते, बट उसकी बड़ी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि वो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इससे नेक्स्ट लेवल पे अगर हम आएंगे तो हम उस चीज को पाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं माइथोलॉजी। माइथोलॉजी वो चीज है जिसको कुछ लोग रियल मानते हैं, कुछ लोग रियल नहीं मानते हैं, कुछ लोग रियल और अनरियल के बीच की चीज मानते हैं। जैसे इंसान और देवता के बीच में एक एग्जिस्टेंस है हमारी माइथोलॉजी में, वैसे ही माइथोलॉजी भी एक ऐसी चीज है, कुछ लोग कहेंगे रियल है, कुछ लोग कहेंगे अनरियल है, और कुछ लोग कहेंगे कि ये ज्यादातर इसका कोर रियल है मगर इसके जो दूसरे डायमेंशंस हैं वो शायद अनरियल है। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ रामचरितमानस पे बहुत ज्यादा, और या रामायण पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है कि इसका क्या वो रूट तो रियल है, लेकिन उसपे होने वाली कई चीजें जो हैं वो पोएटिक हैं, उसमें पोएटिक लाइसेंस है वगैरह वगैरह वगैरह। तो माइथोलॉजी इज अनदर लेवल ऑफ रियलिटी, इज नॉट एंटायरली फैंटेसी, बट इट इज बेस्ड ऑन सम पोएटिक लाइसेंस, वन कैन से। तीसरी चीज है जिसको हम कहते हैं, तो माइथोलॉजी पे मैं रामायण का जिक्र तो कर ही चुका। एक और कहानी है आइकरस या इकरूस की कहानी है, ये ग्रीक माइथोलॉजी है। ये उस बच्चे की कहानी है जो मोम के पंख लगा के उड़ने चला था क्योंकि वो सूरज तक पहुंचना चाहता था, और वो उड़ गया, लेकिन उसके पिताजी ने उसको कहा था कि तुम ज्यादा ऊंचा मत उड़ना क्योंकि तुम्हारे मोम के पंख हैं वो पिघल जाएंगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन वो उस जोश में आ गया, उसने कहा नहीं मैं तो सूरज को प्राप्त करके रहूंगा, और वो सूरज के करीब पहुंचा तो उसके पंख पिघल गए और वो फिर नीचे गिरा और पाताल लोक में पहुंच गया। तो ये कहानी तो अनरियल है, मोम के पंख लगा के कोई सूरज तक नहीं पहुंच सकता, उड़ भी नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे का जो विचार है, which is extreme ambition can lead to irretrievable loss। बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे पंख अगर आपके मोम के हैं तो। ये किसी सच्चाई पर आधारित है, वरना ये मिट जाती, ये होती नहीं। और माइथोलॉजी का ये बड़ा गुण है कि आपको कुछ रियलिटी से दो चार कराता है जो शायद रियलिटी नहीं करवा सकती आपको। उसके बाद हम एक दूसरे लेवल पे आते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मलिज्म या सब्जेक्टिव रियलिटी। मेरी रियलिटी, मैं आपको अपनी रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको हो सकता है मिथ्या लगे, हो सकता है आपको फॉल्सहुड लगे, फैंटेसी लगे, मगर फिर भी मैं आपको अपनी रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक फिल्म है जिसका नाम है एम्पायर। वो शायद करीब 20 घंटे की या एक रात की फिल्म है वो। उसमें सिर्फ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का एक शॉट है, और शाम को फिल्म शुरू होती है और सुबह खत्म हो जाती है, बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी है, पीछे आसमान उसका रंग बदल रहा है, लेकिन वो बैठ के देखना 12 घंटे का एक एक्सपीरियंस है। अब इसको आप कहेंगे कि ये किस किस्म की रियलिटी है, और इस किस्म की रियलिटी पे कोई फिल्म क्यों बनाता है और वो फिल्म कोई क्यों देखता है? तो ये हम इसको कह रहे हैं फॉर्मलिज्म या सब्जेक्टिव रियलिटी, कि मैं ये चीज स्टडी करना चाहता हूँ कि अगर 12 घंटे एक बार की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखा जाए तो अंदर हमारे क्या उपजता है और हमारे अंदर क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे उन चीजों के ऊपर जो रियलिटी बेस्ड तो हैं मगर रियल नहीं है। फ्रांसिस फोर्ड कपोला की फिल्म एपोकैलिप्स नाउ इसका एक एग्जांपल है। वियतनाम वॉर के दौरान जो सोल्जर्स वहां पे लड़ रहे थे उनका डीबेसमेंट हो गया एक तरीके से। आपके एक तो अपने घर से वो बहुत दूर थे, ऊपर जिंदगी मौत की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे वो, तो वो करीब करीब जानवर जैसे हो गए। या जानवर कहना भी गलत है क्योंकि जानवर तो अच्छे होते हैं, ये बहुत ही खूंखार हो गए, बहुत ही वायलेंट हो गए, बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गए, बहुत ही खून के प्यासे हो गए, डिबेसमेंट हो गया उनका। तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी वॉर में एक डिबेसमेंट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो एपोकैलिप्स नाउ फिल्म है उसमें ना रियल सोल्जर है, ना रियल वॉर है, ना रियल लोकेशन है, वो सब कुछ जो है गढ़ा गया है।
ऐसी एक हिंदी की फिल्म मैंने देखी है जिसका नाम कामयाब है। उसमें फिल्म इंडस्ट्री के एक्स्ट्रास का क्या हाल है, वो अभी फिल्म रिलीज हुई है, नेटफ्लिक्स के ऊपर है शायद। हमारी इंडस्ट्री के एक्स्ट्रास का क्या हाल है, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है, लेकिन एक आदमी की कहानी है कि उसका क्या हाल है, वो कैसी जिंदगी जीता है। तो ये आपको रियलिटी से दो चार कराती है, मगर वो आदमी एक्स्ट्रा नहीं है, वो आदमी एक एक्टर है। वो जो डायलॉग बोल रहा है वो अपने मन से नहीं बोल रहा है, वो किसी ने उसको लिख के दिए हैं। वो जो कपड़े पहने हुए हैं वो किसी ने उसको पहनाए हैं, किसी ने उसको डिज़ाइन किए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारी जो जो फीचर फिल्में हैं वो आज की डेट में शायद 90% जो है वो इस कैटेगरी में आती हैं, रियलिटी बेस्ड फिल्म्स। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो ट्रू स्टोरी बेस्ड हैं, रियलिटी नहीं रही, ट्रू स्टोरी। एक एक वाकया क्या हुआ, किसी के साथ हुआ, एक एक वाकया क्या हुआ वो उसमें दिखाया गया है, मगर एक्टरों के माध्यम से दिखाया गया है। गांधी फिल्म इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। या अभी एक मैंने बहुत अच्छी फिल्म देखी टोगो, वो इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। एक फिल्म है तलवार, वो इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। वो एक एक कैनवस को नहीं ले रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक प्रिसाइज हैपनिंग को लेकर के उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो वो भी एक किस्म की रियलिटी है, या रियलिटी का वो जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक और कैटेगरी है जिसको हम रियलिज्म कहते हैं, रियलिज्म, यथार्थवाद। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मेरी तरफ से तो पाथेर पांचाली है, लेकिन न्यू रियलिज्म की कोई भी आप फिल्म ले लीजिएगा तो बाइसिकल थीव्स जैसी फिल्म उसके ऊपर है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि रियल कहानी तो ली ही है, लेकिन रियल लोगों से एक्टिंग भी करवा ली है। यानी कि मैं अगर किसी कसाई पे, बूचर की कहानी पे फिल्म बनाता हूं तो मैं एक्टर ढूंढने नहीं जाऊंगा, मैं एक बूचर को कहूंगा कि मैं आपको ले रहा हूं क्योंकि आप असल में बूचर हैं, कसाई हैं, आप सब कुछ चीज जानते हैं। मैं आपको अब बताऊंगा कि आपको क्या करना है, डायलॉग मैं आपको बताऊंगा, बट एक्टर नहीं है वो रियल लाइफ कैरेक्टर है। तो इसको हम रियलिस्टिक या रियलिज्म पे बेस्ड की कैटेगरी में मान सकते हैं। तो हम एक ग्राफ में चल रहे हैं जहां पे रियलिटी का अंश बढ़ता चला जा रहा है। हम ये देख रहे हैं, हम शुरू हुए थे फैंटेसी से जहां रियलिटी का अंश था ही नहीं, जीरो था, और वहां से धीरे 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 हम उन फॉर्म्स में आ रहे हैं जहां पे रियलिटी का अंश जो है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब एक चीज है जिसको हम कहते हैं सिनेमा वेरिते। सिनेमा वेरिते डॉक्यूमेंट्री का पार्ट है। यहाँ से हम उस चीज में चले गए हैं, अगर एक थिन लाइन है तो ये लाइन हम यहाँ क्रॉस करके सिनेमा वेरिते में चले गए। सिनेमा वेरिटी ये है कि जो सच्चाई है उसको हमको दिखाना है। अब वो हम कैसे भी दिखाएं, तो अब सवाल ये है कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो आंख से नजर नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेड लाइट एरिया में चले जाइएगा तो वहां से रियलिटी गायब हो जाएगी, आपका कैमरा देखते ही रियलिटी। तो आपको करना ये पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि भाई प्रोस्टिट्यूट्स इस तरीके से खड़ी होती हैं, उनके खड़े होने का ये तरीका है, तो देन यू विल हैव टू एक्चुअली मेक देम एक्ट। इसको आप अनरियल कह सकते हैं, मगर इसको रियल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास रियल कैप्चर करने का कोई तरीका नहीं है। ये सिनेमा वेरिटे का आंदोलन या मूवमेंट इसी कारण से शुरू हुआ, उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर शुरू हुआ जिसमें रियलिटी को कैच करने का कोई तरीका नहीं था। एक फिल्म है जिसका नाम है द एक्ट ऑफ किलिंग। मैं ये सब फिल्में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें और कभी मौका लगे तो इनको देख लें। ये कहानी मलेशिया या इंडोनेशिया के एक ऐसे इंसान की है जो लोगों का कत्ल करता है for some reason. So he is actually a murderer. Now you can tell the story of a murderer by writing one fiction script and getting some actors to do that, or you can catch hold of that same murderer and say I want to now redo your story. मैंने आपने जो कर्म किए हैं या कुकर्म किए हैं, मैं उनको वो क्यों किए हैं, किस मानसिकता के चलते किए हैं, मैं ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और आप श्रीमान जो कन्विक्टेड मर्डरर हैं, अपनी सजा काट चुके हैं, अब आप आके मेरी फिल्म के लिए वो सब काम एक्ट करके दिखाएंगे जो आपने किए हैं। वो फिल्म आपको ऐसे हिला देगी, 2.5 घंटे की फिल्म। और उसका बड़ा कारण ये है कि वो आदमी जो मर्डर का रोल प्ले कर रहा है वो असल में वही मर्डरर है। वो कहता है मैं बताता हूँ कि मैं कैसे एक तार से गला घोंट देता हूँ, वो बता रहा है। तो ये ऐसी और बहुत सारी फिल्में, एक फिल्म डिवीजन की फिल्म है अ पोएट अ सिटी एंड अ फुटबॉलर, वो भी एक इसी तरह की ऐसी फिल्म है। तो ये इस तरह के एजी सब्जेक्ट्स में के कारण सिनेमा वेरिटे की ईजाद हुई, आप कह सकते हैं कि उसकी स्थापना हुई। इससे भी ज्यादा रियलिटी का लेवल है जिसको हम ऑब्जर्वेशनल या डायरेक्ट सिनेमा कहते हैं, जिसमें हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा कैमरा अपना काम करता है, जो है जैसा है वैसा कैप्चर करता है। ये कुछ चीजों में पॉसिबल है।
ये सड़क पे ट्रैफिक कैसा चल रहा है उसको शूट करने के लिए पॉसिबल है। कार में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं लगेगा कैमरा लगा हुआ है, वो वैसे ही चलाएंगे जैसे चलाते हैं। आप उस रियलिटी को कैप्चर कर सकते हैं। आपको कार वालों को रोक करके कोई एक्टिंग करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो जिस चीज़ को हम डॉक्यूमेंट्री कह रहे हैं, वो ये आखिरी दो जो मैंने आपको सिनेमा वेरिटे और ऑब्जर्वेशनल या डायरेक्ट सिनेमा बताया, ये दो कैटेगरीज हैं जिनको वाजे तौर पे, मोटे तौर पे हम डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। मगर ये कोई वाटर टाइट नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक लाइंस नहीं है। इस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इस पे बहस हो सकती है। तो मैं आपको हम ये बात कर रहे हैं कि ये रियलिटी से डील करना, रियलिटी को कैप्चर करना जो है, ये शुरू हुआ डे वन से। मतलब जब से मूविंग इमेज इजाद हुई तब से जो सबसे पहली फिल्म बनी, जो सबसे पहली मूवी बनी, वो उन लोगों के बारे में थी जो फैक्ट्री से निकल के बाहर आ रहे थे। तो वो तो रियलिटी थी अपने, जो पहली फिल्म बनी वही रियलिटी पे बेस्ड थी, क्योंकि तब उनको पता भी नहीं था कि शायद एक्टिंग भी करवाई जा सकती है, कहानी भी कही जा सकती है। उन्होंने जैसा हो रहा था वही सब कुछ शूट कर लिया। तो वो लूमियर फिल्म्स हैं, आप उसको देख सकते हैं, कभी मौका लगे तो आप देखिएगा लूमियर ने क्या शूट किया। उसने अपने जहाँ पे वो रहते थे लियोन में, उन्होंने जो होता था वहां पे उसको शूट कर लिया। लेकिन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो लोग तब तक कैमरे आ चुके थे। 1895 में मूवी कैमरा इजाद हुआ और उसके 20 साल बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। 20 साल गुजर चुके हैं। तो लोगों को लगा इस मूवी कैमरे से हम इस युद्ध को शूट भी तो कर सकते हैं। हम वर्कर कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्री से हट करके युद्ध को शूट कर सकते हैं। और उसको शूट करके हम, उसका पर्पस ये है कि हम अपने नागरिकों को दिखा सकते हैं कि देखो हमारे सोल्जर्स फ्रंट पे कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो हम अपने देश का मोराल बूस्ट कर सकते हैं। इसलिए 14 से 18 के बीच में बहुत ज़्यादा फिल्में बनी। लेकिन 1922 में एक फिल्म बनी है जिसका नाम है नानूक ऑफ द नॉर्थ। एस्कीमोज कैसे रहते हैं अपने जीवन, एस्कीमोज का जीवन कैसे होता है, उसने वो दिखाई है। और वो सिनेमा वेरिटे फिल्म है। एस्कीमो को कहा गया कि अगर आप इस तरह से सोते हैं तो अब आप सोइए मेरे कैमरे के लिए, आप इस तरह से शिकार करते हैं तो आप शिकार कीजिए मेरे कैमरे के लिए। तो 1922 में उसको दुनिया की पहली डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है, या पहली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री उसको कह सकते हैं आप, और इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है। मगर इसी ज़माने में 20s के ज़माने में रशिया में एक शख्स है जिसका नाम जिगा वर्तोव है, DZIGAVERTOV, जिगा वर्तोव। उसने एक नई चीज़ सामने रखी। अब दो ओपिनियंस हैं। एक तो कैमरा रियलिटी कैप्चर कर सकता है, जो फिजिकल लेवल पे तो ठीक ही बात है, मेरा चेहरा जैसा है वैसे ही आप देख रहे हैं, कैमरे ने उसको ठीक से ही कवर किया हुआ है। लेकिन जिगा वर्तोव का कहना था कि रियलिटी कैप्चर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कैमरे के आगे लोग बनावटी हो जाते हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही है। ये आप कभी भी अपना कैमरा लेके किसी सब्जी मार्केट में चले जाइए तो आप देखेंगे कि वो लोग एक अजीब सी तरह से बैठ जाएंगे। उनकी बॉडी में एक स्टिफनेस आ जाएगी, उनके चेहरे पे एक सो कॉल्ड प्लेजेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो अनरियल हो जाएंगे एक्चुअली। तो कैमरा रियलिटी कैप्चर करता है या कैमरा रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, इज अ क्वेश्चन दैट जिगा वर्तोव डेल्ट विद। और उन्होंने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है द मैन विद अ मूवी कैमरा। ये बिल्कुल शुरुआती दौर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इनको देखना जरूर चाहिए क्योंकि ये बहुत कमाल की फिल्में हैं अभी भी। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा बदलाव आया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया, और उसको मैं कहता हूँ हिटलर्स गिफ्ट। हिटलर ने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, हिटलर ने सब काम खराब किए, गलत काम किए। मगर एक काम उसने किया, अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए उसने अपने ऊपर फिल्में बनवाई बहुत सारी। और उसको ये बात समझ में आ गई कि उस जमाने के कैमरे जो हैं बहुत हैवी हैं, मैं इन हैवी कैमरा से अपनी आउटडोर एक्टिविटीज कैप्चर नहीं करवा सकता। तो उसने जर्मन इंजीनियर्स को और जर्मन साइंटिस्ट को ये चैलेंज किया कि आप लाइट वेट कैमरा बनाइए, और जर्मनी में लाइट वेट कैमरा बने, जिसमें से एक कैमरा है जिसका नाम एरीफ्लेक्स है, जो हमारी फीचर फिल्म इंडस्ट्री में आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर कैमरा है। वो हिटलर और जर्मनी की देन है। इसके अलावा एगफा नाम की एक रॉ स्टॉक बनाने वाली कंपनी है, फास्ट फिल्म, ऐसी फिल्म जिसको हम बिना लाइट के शूट कर सकें, ऐसी फिल्म का ईजाद और वहां निर्माण उन्होंने किया। इसके अलावा बहुत सारे इनोवेशंस हुए जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डॉक्यूमेंट्री का लुक बदल गया। डॉक्यूमेंट्री का कैमरा अब अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत करने लगा क्योंकि वो लाइट वेट कैमरा था। लेकिन डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो सबसे ज्यादा गहराई से अगर किसी ने अध्ययन किया
तो उसका नाम जॉन ग्रायरसन है, जो एक ब्रिटिशर है। और जॉन ग्रायरसन ने जो अप्रोच रखी, वो अप्रोच ये थी कि डेमोक्रेसी का तात्पर्य 5 साल में एक बार सरकार चुनना नहीं है। दैट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का तात्पर्य ये है कि हमारे नागरिक जो हैं वो जागरूक नागरिक बने, ताकि वो सही सरकार चुन सकें, और विद इन दोज 5 years also they are able to correct the government, that they are able to course correct the government. तो जागरूकता जो है वो डेमोक्रेसी की पहली कंडीशन है, इज व्हाट जॉन ग्रायरसन प्रोपोगेटेड, एंड ही फिगर्ड कि जागरूकता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो डॉक्यूमेंट्री है। न्यूज़पेपर तो है ही, किताबें तो हैं ही, व्याख्यान तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री कहीं पर भी जाके, चाहे वो स्लम हो, रेड लाइट एरिया हो, क्राइम इन्फेस्टेड जोन हो, सोल्जर्स की ट्रेनिंग हो, सब जगह पे जाके रियलिटी कैप्चर कर सकता है। और वो इस तरह से कर सकता है कि कोई किताब, कोई शब्द जाल उसको बता नहीं सकता, जितनी सफाई से कैमरा ये काम कर सकता है। तो जॉन ग्रायरसन ने डॉक्यूमेंट्री की एक परिभाषा कही है जो मुझे काफ़ी पसंद है, और वो मानी भी जाती है कि डॉक्यूमेंट्री की अगर कोई सही परिभाषा या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है तो ग्रायरसन की है, जिसमें उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्री इज अ क्रिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअलिटी, रियलिटी, बट क्रिएटिवली ट्रीटेड। ये डिफरेंस एक जर्नलिस्टिक न्यूज स्टोरी और डॉक्यूमेंट्री में जो 3-4 बड़े डिफरेंस हैं, उसमें से एक बड़ा डिफरेंस ये है दैट देयर इज एन इंटरप्रिटेशन, देयर इज अ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियलिटी, नॉट अ मियर रिफ्लेक्शन ऑफ अ रियलिटी। तो अब जो है 10:55 हुए, टाइम इज मोर लेस फिनिश्ड। मोहित जी, आपको हम वो फिल्म तो बच्चों को कह सकते हैं देखने के लिए, और अगर आपको लगता है कि हम 11:15 तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं तो तैयार हूँ उसके लिए। जी सर, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर होंगे। मैं स्टूडेंट्स की तरफ से आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सर डॉक्यूमेंट्री में भी आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपने पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स भी बनाए हैं सर। क्योंकि ये हमारे जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ये अभी 2nd ईयर में आए हैं, और जो आपने फिल्म दिखाई वो बिल्कुल इनसे रिलेट करती है, क्योंकि वो भी 20 साल के हैं और ये भी कहीं 19-20 साल के ही हैं। तो सर इनको अपने इस सेमेस्टर में एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल अपना एक पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए, ताकि ये लोग भी अपना एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आइडिया, कि अपने आइडिया पे काम करें और किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने इसलिए उठाया कि अभी हम डॉक्यूमेंट्री के और पहलुओं पे भी जा सकते थे, लेकिन उसका समय नहीं है। लेकिन एक पहलू डॉक्यूमेंट्री का ये जरूर है कि आपने फिल्म बनाई, उससे समाज का क्या उद्धार हुआ, ये एक सवाल है। अब मैंने डॉक्यूमेंट्री अपने ऊपर बना ली कि पंकज सक्सेना कितना महान आदमी है, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इससे समाज का कुछ कल्याण हुआ नहीं, तो इसलिए मैं इसको डॉक्यूमेंट्री कहूंगा ही नहीं, मैं इसकी परिभाषा ही नहीं होगी डॉक्यूमेंट्री की, ये बेसिक डेफिनेशन मीट नहीं कर रहा। तो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट जो है ये उसी किमाश की चीज है, लेकिन ये बहुत कम समय में अपनी बात कहने का एक तरीका है। आप डॉक्यूमेंट्री में किसी चीज के लिए आधा घंटा ले सकते हैं, 20 मिनट ले सकते हैं, कुछ लोग 3 घंटे भी ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट जिसको हम कहते हैं, पब्लिक सर्विस फिल्म हम जिसको कहते हैं, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है। आप बहुत कम समय में अपनी बात कहें, और पब्लिक सर्विस फिल्म जो है वो सबसे ज्यादा क्रिएटिवली आपको चैलेंज कर सकती है। जैसे अगर आप कहें कि भाई आंख दान करनी चाहिए, नेत्र दान करना चाहिए, इस पे फिल्म बनानी है, तो सबसे सीधी बात तो ये है कि आप किसी को पकड़ लीजिए जिसने कहा जी मैंने तो नेत्र दान कर दिया क्योंकि बहुत अच्छी चीज होती है। ये सबसे खराब पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट फिल्म है, क्योंकि इसमें कुछ क्रिएटिव नहीं है। और ऐसी फिल्में सबसे ज्यादा बनती है, 99.9% पब्लिक सर्विस फिल्में ऐसी बनती हैं विच स्टेट दी ऑब्वियस, इट डज नॉट मूव और मोटिवेट एनीबॉडी। ये जो व्याख्यान है, ये जो लेक्चरिंग है, क्या करना चाहिए, सुबह सो के उठना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये चीज किसी को मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि ये आप जिसको कहना है ना, उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। जी। तो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट जब बच्चे बनाए, मेरा कहना तो ये है कि सबसे पहले तो इनको कम से कम 1000 पब्लिक सर्विस फिल्म्स देखनी चाहिए, 1000, क्योंकि उसमें 900 तो होंगी ट्रैश, लेकिन आपको मिलेंगी कहाँ से, सबसे अच्छी चुनिंदा फिल्में कहाँ से मिलेंगी? तो इसलिए आपको जहाँ जो मिले आप सब कुछ देख लीजिए, फिर आपको मिलेंगी 8-10 बढ़िया फिल्में उसके अंदर से, फिर आप कहिए कि मैं वो फिल्म बनाऊंगा जो कम से कम इस लेवल की हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक फिल्म थी जो मैंने बहुत साल पहले देखी थी, उसमें एक आप समझ लीजिए एक जार है, मर्तमान जिसको कहते हैं ना, शीशे का जार,
जिसमें आप अंदर देख सकते हैं क्या है। तो उसमें एक क्लोजअप है उस जार का, और एक हाथ आ रहा है और उसमें टमाटर डाल रहा है। हाँ, तो एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा, एक पॉइंट पे वो जार भर जाता है टमाटरों से, फिर एक और वो डालता है और उसको थोड़ा दबाता है, तो ऐसे टमाटर फटना शुरू होते हैं, वो जो आप बाहर से देख सकते हैं कि वो पिचक रहे हैं, फट रहे हैं, पिचक, वो भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। उसके बाद मैसेज ये था कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे था बेसिकली, कि एवरीथिंग हैज अ कैपेसिटी और अ लिमिट, बियॉन्ड दैट इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें कोई शब्द नहीं बोला गया था, इस पूरी फिल्म के अंदर कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, और मैं उन फिल्मों का बड़ा कायल हूँ जिसमें शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर बात है कि हम जो चीज़ आंख से देखते हैं वो हमको ज़्यादा अच्छी तरह से रजिस्टर करती है। इसलिए कभी आप आंख बंद करके देखिएगा, आपको घुटन होनी महसूस हो जाएगी। ये बिल्कुल हमारे लिए हमारे बना है, इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। आप किसी की स्पीच, भाषण अगर ना सुने, आपको कोई घुटन, कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग पूरी जिंदगी बिना किसी को सुने हुए काट सकते हैं, दे डोंट हियर एनीबॉडी एट ऑल, बट देयर इज नो, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू सी थिंग्स। तो इसलिए विजुअल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और आप इसलिए पब्लिक सर्विस बनाए। विजुअल तो मैं फॉर्म के तहत कह रहा हूँ, बट इट शुड बी एबल टू मूव सम पीपल। आप इतना ही बना देंगे सड़क कैसे क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन फिर वो उसमें भाषण नहीं होना चाहिए। वो आप ये इंस्ट्रक्शन मत बताइए सड़क कैसे क्रॉस करनी चाहिए, आप कुछ दिखाइए जो रजिस्टर हो। तो बड़ा लंबा जवाब दे दिया मैंने। नहीं सर, अच्छा, आपने काफी मुझे लगता है डिटेल में जवाब दिया, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लैरिटी हुई होगी, क्योंकि उनको बनानी भी है एक पब्लिक सर्विस फिल्म इस सेमेस्टर के दौरान। एक सवाल और आया सर, सुमंत्रा सारथी दास सर हैं हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन देखते हैं, उनका सवाल है जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं आ रहा था, कि इन अ डॉक्यू ड्रामा we dramatize scenes and during the process the element of reality tends to get distorted. Do you think relating this genre to documentary is reasonable? I think it is blasphemy. I think it is criminal. अगर मैं आपका सवाल ठीक से समझ पा रहा हूँ, तो ये जो इतिहास है ना, ये बड़ी, इसको कहते हैं, इसकी बड़ी सैंक्टिटी है, और ये टेढ़ा काम है, क्योंकि जो कल हुआ हमारे साथ वो ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक वो फिल्म है ना अकीरा कुरोसावा की, रैशोमोन, एक घटना हुई है, 4 लोगों ने उसको देखा है, वो बयान कर रहे हैं, चारों के बयान बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। तो समय के साथ और पर्सपेक्टिव के साथ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन पूरी लड़ाई इसकी है कि हम जो कुछ हुआ है उसको उस रूप में संजो के रख सकें, ताकि हम किसी को बता सकें कि भाई ये हुआ था। उसको झुटला देना या उसको कॉम्प्रोमाइज कर देना और फिर उसको सच बता के लोगों के आगे पेश कर देना, जो है वो मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ा अपराध है। ये बिल्कुल काम ये नहीं करना चाहिए, और इसको कई बार लोग कहते हैं कि क्रिएटिव लाइसेंस है। फिर वो एटनबरा की गांधी के ऊपर हमको जाना चाहिए कि एटनबरा ने अपनी 18 साल उसने लगा दिए कि मैं इस फिल्म में कोई भी तथ्य गलत मेरा नहीं होगा। गांधी जी बिल्कुल गांधी जी, बस जितना मुझसे हो सकेगा गांधी जी जैसे लगने चाहिए, और दांडी यात्रा में बिल्कुल वही दिखाऊंगा जो कि दांडी यात्रा में हुआ था। मैं 50,000 लोगों से कंफर्म करूंगा कि क्या हुआ था, और अगर चीज कंफर्म नहीं हो पा रही तो मैं उसको फिल्म से ड्रॉप कर दूंगा, मैं उस सीन को ही नहीं दिखाऊंगा। तो आप उसको फैंटेसी कह के पेश कर सकते हैं, फिर कोई बुरी बात नहीं है। आप उसको कहिए सुपरमैन की कहानी है, ये हवा में उड़ने वाले आदमी की कहानी, मगर आप रानी झांसी की कहानी तो मत बदल दीजिए। मेरा ऐसा ख्याल है, एज अ डॉक्यूमेंटरिस्ट मेरा ये ख्याल है। सर एक सवाल और आता है, आपने आइडिएशन की बात करी, आपने ये भी बोला कि किस तरह से हमें अपना आइडिया पे काम करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्री क्या है और क्या नहीं है, और आपने अभी ये भी बताया कि किस तरह से डॉक्यू ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री में फर्क है। थोड़ा सा आप ये भी बताएं सर कि जो शॉट्स लेने चाहिए, किस टाइप के शॉट्स थोड़े अपीलिंग रहेंगे, या किस तरह से हमें विजुअल ग्रामर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ शॉट्स हम लोग पढ़ते हैं और उसके थ्रू हम स्टोरी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने IM20 के अंदर में भी देखा कि हमने क्लोजअप शॉट्स काफी लिए, तो थोड़ा शॉट्स के बारे में सर आप प्लीज अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप मुझसे ये शॉट्स के बारे में मैं बात डॉक्यूमेंट्री के पर्सपेक्टिव से करूं या कि जनरल फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से? सर जनरल फिल्म मेकिंग सर। हाँ, तो अभी हम 1 मिनट के लिए डॉक्यूमेंट्री सारी भूल जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की ग्रामर थोड़ी सी फर्क है, मगर आप जो पूछ रहे हैं वो और भी बेसिक चीज आप पूछ रहे हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो शॉर्ट्स हैं, इसको हम अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा भी हो सकती थी, मगर अभी अंग्रेजी भाषा से जोड़ करके चलें तो एक ग्रामर है। एक सेंटेंस है,
ईट्स शूट्स एंड लीव्स, ये एक किताब का टाइटल है। अब कॉमा कहाँ लगना है? अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो ईट्स शूट्स एंड लीव्स है, ये किसी ऐसे आदमी की, किसी के बारे में बात है जो शूट्स और लीव्स को खाता है। शूट्स मतलब कोपले और लीव्स पत्तियां, पत्तियां और कोपले को खाता है। अगर आप ईट्स कॉमा शूट्स एंड लीव्स करेंगे तो सेंटेंस का पूरा अर्थ बदल गया। कोई खाता है, फिर गोली मारता है और फिर चला जाता है। तो एक कॉमा से सब बदल गया। ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी में उदाहरण है, हिंदी में भी है। तो ग्रामर की कुछ वैल्यू है, इसीलिए हम लोग ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं। आप कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, प्लीज कम एंड सिट डाउन, प्लीज सिट कम एंड डाउन। अगर आप ये उसको कर देंगे तो वो आदमी को, वो आज बैठेगा नहीं बैठेगा, उसको समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। एक ऑर्डर की जरूरत है ना, एक थॉट को प्रोसेस करने के, एक को कम्युनिकेट करने के लिए एक ऑर्डर की जरूरत है। वो ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये ऑर्डर की कोई सैंक्टिटी नहीं है, किसी धर्म ने नहीं बताया है, किसी बाइबल, किसी कुरान में नहीं लिखा हुआ, किसी गीता में नहीं लिखा हुआ। ये एक चीज है जो ह्यूमंस हैव एग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स कि ये ऐसा ऑर्डर होगा। SIT को सिट बोलेंगे और ये बैठने के बारे में होगा। ये अब सबने मान लिया, अदरवाइज उसका कोई वजूद नहीं है। SIT सिट क्यों होना चाहिए, BIT सिट क्यों नहीं होना चाहिए, B में से S की आवाज क्यों नहीं निकलनी चाहिए। दीज आर ऑल कन्वेंशंस दैट पीपल हैव एग्रीड अपॉन एंड देयरफॉर इट ईजेस कम्युनिकेशन, जस्ट मेक्स लाइफ ईजियर फॉर अस। तो अब हम आते हैं शॉर्ट्स के ऊपर। आपकी जो सिनेमा है वो खड़ा हुआ है एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं। वो स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स हो सकता है, या अब मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ, जनरल में बात कर रहा हूँ। एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको कहा जाता है, या 5 एक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बीच में सीक्वेंसेस होंगे, हर स्ट्रक्चर में कुछ सीक्वेंसेस होंगे। हर सीक्वेंस कुछ सीन्स से मिलके बनेगा, और सब सीन्स जो हैं शॉर्ट से मिलके बनेंगे। और शॉर्ट के अंदर अपनी डिटेलिंग होगी, वो पैन शॉट, टिल्ट शॉट, जो भी हो उसमें प्रॉपर्टी रखी हो, एक्टर हो, कोई चल रहा हो, कोई बैठा हो, ये उसके सब यूनिट्स हैं। तो अब ये इसको आप स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि इसको आप कंपेयर कीजिए एक बिल्डिंग बनाने जैसी चीज को। एक आपको बिल्डिंग बनानी है, उसकी एक फाउंडेशन होगी, एक फर्स्ट फ्लोर होगी, सेकंड फ्लोर होगी, थर्ड फ्लोर होगी, पिलर्स होंगे, दीवारें होंगी, नीचे फ्लोरिंग होगी, ऊपर छत होगी, उसमें हुक होगा जैसे पंखा टंगेगा वगैरह वगैरह। इसमें बहुत ज्यादा ऑर्डरलीनेस है, बहुत ज्यादा ऑर्डरलीनेस की जरूरत है। तो ये बिल्डिंग है क्या? ये नेहरू प्लेस है या ताजमहल है या बिरला मंदिर है? ये क्या है? क्या हमको सबसे पहले वो चीज़ अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, और फिर फंक्शंस क्या है, और उस हिसाब से ये बनेगी। तो बिल्कुल शॉट को आपको इस तरीके से लेना है। हो ये रहा है कि हम सोच रहे हैं कि यार फिल्म में एक ट्रैक शॉट तो मैं लूंगा ही लूंगा, एक क्रेन शॉट तो मैं लूंगा ही लूंगा, ड्रोन तो होनी चाहिए मेरी फिल्म में। तो सब गलत हो रहा है। आप ना फ्लोरिंग करने बैठ गए हैं अपने कमरे की कि मैं यहाँ पे कौन सी इटालियन मार्बल लगा देता हूँ। अभी आपने छत के बारे में सोचा नहीं है, पिलर के बारे में आपने सोचा नहीं है, दरवाजा किधर होगा, खिड़की होगी, आपने सोचा नहीं है। तो जब भी कोई भी फिल्म है, कोई भी आपको कोई थॉट और कोई आइडिया कम्युनिकेट करना है, तो ये तो लाजमी है कि आप बैठ करके पहले उस बिग पिक्चर को आप देख लीजिए कि हमको करना क्या है, और उसके बाद आप फिर देन यू गो इनटू मोर डिटेल, वहां से जाके आपका शॉट डिफाइन होगा। वरना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किसी चीज को एक्सट्रीम क्लोजअप में ले लो, या क्लोजअप में ले लो, या मिड शॉट में ले लो, या फ्रंटल ले लो, या प्रोफाइल ले लो, या अंडरलिट ले लो, या ओवरलिट ले लो, या आउट ऑफ फोकस ले लो, इन फोकस ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो देखिए, सितार मैं भी बजा सकता हूँ, मुझे सितार पकड़ना आता है और सितार में से आवाज निकालना भी आती है, लेकिन मैं किसी भी हालत में रविशंकर जैसा सितार नहीं बजा सकता, क्योंकि वहां पे एक डिजाइन है और एक ऑर्डर है। वो एक ऑर्डर में बजा रहा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और मैं एज अ फिल्म मेकर अपने एक शॉट से, एक सा के एक नोट से इतना मुतासर हुआ बैठा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यार ये शॉट तो मैं लूंगा ही लूंगा फिल्म के अंदर। क्या है कि उसका कोई, इसीलिए ये पाथेर पंचाली जैसी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं कि उन्होंने कहा मुझे कहानी कहनी है। एक औरत उदास थी, मुझे ये शॉट लेना है, एक औरत उदास थी, इस शॉट में उदासी औरत की आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके पहले क्या था, बाद में क्या था, वो सब चीज़ एक दूसरे से की उसकी रेलेवेंस है। तो ये है, मतलब अगर कुछ जी सर, एक और सवाल है, ये भी हमारे सुमंत्रा सारथी दास सर हैं, इनका सवाल है। ये कह रहे हैं कि विद द ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दीज डेज, do you think that the age-old process of video or film production has taken a new shape in terms of production logistical requirements? Can you please throw some light on changing trends in terms of logistics? आई थिंक इस वक्त तो लॉजिस्टिक्स की बात करना ही मुझे लगता है कि
मतलब बहुत ही अजीब सा समय है। अब हमने ये कहा है, मैं 2 मिनट ही लूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आई थिंक बट दिस इज द रियलिटी टुडे। आज की डेट में मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो सकता। वो जो मेकअप आर्टिस्ट आपके मुंह से मुंह लगा करके यहाँ मस्कारा लगाता था, रूज लगाता था, अब वो पॉसिबल नहीं है कोविड की वजह से। अब एक्टरों को कहा गया है आप अपना मेकअप खुद कीजिए। आज आप 60 साल से ऊपर के आदमी को कास्ट नहीं कर सकते। आपकी फिल्म में अगर दादाजी का रोल है, टू बैड, आप 50 साल के किसी आदमी को लेके उसके बाल में चॉक पाउडर लगा के उसको दादाजी बनाइए। तो इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है, इस वक्त तो इट इज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू शूट एनीथिंग एट ऑल। फिर भी लोग कर रहे हैं क्योंकि करना है, कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस जमाने की बात करें जो अभी हाल में मार्च से पहले था और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा जमाना आएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ये लगता है कि किस एनवायरनमेंट में ऑडियो विजुअल कंटेंट को देखा जा रहा है वो डिटरमिन कर रहा है उसकी हर चीज को, उसके कंटेंट और उसकी फॉर्म को देखा कहाँ जा रहा है। अभी जो फिल्में हम लोग बना रहे हैं, जब उसकी री रिकॉर्डिंग होती है तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है स्टूडियो में, और बहुत बड़े स्पीकर के ऊपर उस ऑडियो को प्ले किया जाता है और सुना जाता है और उसको रिफाइन किया जाता है कि फुटस्टेप्स की आवाज़ है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करो, ये ज़्यादा श्रिल हो रहा है, वो पीछे जो चिड़िया बोल रही है उसको ज़रा ठीक करो, उसमें ये प्रॉब्लम है, वो रेपिटेटिव बोल रही है। इतना बारीकी से काम हो रहा है और आदमी बैठा है उस हॉल के अंदर उन बड़े बड़े स्पीकर्स को पे वो मॉनिटर कर रहा है और इस चीज़ को ठीक कर रहा है। वो फिल्म देखी कहाँ जा रही है? वो फिल्म देखी जा रही है गुड़गांव से लेकर के राजीव तक चौक तक जाने वाली मेट्रो ट्रेन के अंदर, जिसमें धड़ 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 एक और ही ट्रैक चल रहा है। तो आपके पास सब चिड़िया विड़िया सब मर गई उसके अंदर, कुछ नहीं बचा, तो डायलॉग ही बचा उसके अंदर। तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी ज्यादा अगर वो फिल्म मेट्रो ट्रेन में ही देखनी है लोगों ने? तो यही हमेशा की मेन चीज यही है कि आपकी जो सारी जो स्टोरी टेलिंग है वो एनवायरनमेंट को देख के होनी चाहिए। अब हो ये गया है, एक जमाना था जो हमने भी देखा है बचपन में, जब सिर्फ अंधेरे कमरे में बैठ के सिनेमा देखा जाता था विदाउट एनी इंटरप्शन। मतलब सिनेमा हॉल में आप जाइए, बत्तियां बंद हो जाती थी, आप कुर्सी पे बैठिए, कोई चूं तक नहीं करेगा, आप पूरी फिल्म देख लीजिए, एक ही एनवायरनमेंट था। फिर टीवी आ गया तो टीवी वाला एनवायरनमेंट कुछ फर्क हो गया, उसमें टीवी भी चल रहा है, प्रेशर कुकर में दाल भी पक रही है। उसके बाद अब ये वाला आ गया, OTT प्लेटफॉर्म्स बीइंग सीन ऑन सिनेमा हॉल, उसमें मेट्रो ट्रेन में देखने का एनवायरनमेंट आ गया। तो अभी फिल्म मेकर को भी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या। मतलब आप सोचिए कि वो गुलाबो सिताबो फिल्म जो थी वो नेटफ्लिक्स पे देखी जाएगी ये सोच के नहीं बनाई गई थी, इसलिए उसमें इतने सारे लॉन्ग शॉट हैं। लेकिन हम सब ने उसको देख तो सेल फोन पे लिया, लैपटॉप पे मैक्सिमम देख ली ना हमने उसको बैठ करके। तो वो लॉन्ग शॉट में तो अमिताभ बच्चन का मुंह भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या हो रहा है, वो कर क्या रहा है, वो तो बड़ी एक्टिंग कर रहा है वहां पे खड़ा होकर। तो ये है, हमको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कहाँ देखी जा रही है। जी जी सर, वैसे तो आपने अच्छा सर अमरीश सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड एक बात मैं उसी समय पूछना चाह रहा था जब पंकज जी ने कहा था कि मेरा कहना यह है कि क्या बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बन सकती, क्योंकि आपने अपना उदाहरण देके उसको डिस्काउंट कर दिया पूरी तरह से। सर अनम्यूट कर लीजिए पंकज सर। हाँ जी अनम्यूट हो गया। हाँ मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं, भी नहीं मतलब वो मतलब बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं मानता हूँ कि बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री जरूर बननी चाहिए और बन भी रही है। अमेरिका में तो पूरा एक चैनल है बायोग्राफी के, वो पूरे चैनल में सिर्फ बायोग्राफी दिखाते हैं सुबह से शाम तक। तो बायोग्राफिकल्स तो जरूर बननी चाहिए। अगर मेरे उस वक्तव्य से ऐसा कुछ इंप्रेशन बना कि बायोग्राफिकल्स नहीं बननी चाहिए तो ऐसा नहीं है। बायोग्राफिकल्स तो जरूर बननी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने इंसानों के कई मॉडल्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हमको फॉलो करें तो हमारा भला है उसमें, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल फॉलो ना करें। दोनों, मैं समझता हूँ दोनों के ऊपर बननी चाहिए। आपको ये पता होगा एक फिल्म बनी थी, मैं उसका नाम भूल गया, वो इंडिया में बैन हो गई थी फिल्म। उसमें ये उसी के ऊपर था, वो जो रेप केस हुआ था यहाँ पे। सर इंडियाज डॉटर। अच्छा इंडियाज डॉटर, इंडियाज डॉटर, या इंडियाज डॉटर।
करेक्ट करेक्ट। लेकिन मैं शायद नहीं, आई थिंक आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंडियाज डॉटर, आई एम सेइंग मे बी किसी ने ना उसका इंटरव्यू किया था, उस अपराधी का किसी ने इंटरव्यू किया था। अच्छा। वो पता नहीं इंडियाज डॉटर में था या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिर लोगों ने कहा था कि इसको मत दिखाओ। एक बड़ा ओपिनियन ये था कि इस इंटरव्यू को नहीं दिखाना चाहिए, हम क्यों उसको दिखाना चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो दूसरी बात है वो भी यही थी कि वो कैसी मानसिकता का आदमी है तो पता होना चाहिए, और उस मानसिकता के क्या कोई लक्षण भी होते हैं, क्या हम उसको कहीं पहचान भी सकते हैं, क्योंकि ये अगर ये रिस्की है और ये खराब आदमी है और ये इससे खतरा है तो फिर पता होना चाहिए उसके बारे में। तो बायोग्राफिकल्स जो हैं वो दोनों तरह की बननी चाहिए, इसलिए हिटलर पे कितनी सारी फिल्में बनी है कि कैसा नहीं होना चाहिए, वो भी है, और गांधी जी पे भी बनी है और लिंकन के ऊपर भी बनी है, तो जरूर बननी चाहिए इन शॉर्ट। नहीं तो खराब आदमी के ऊपर भी बननी चाहिए ना, इसको आप मानते हैं? सब, हाँ, सब पे बननी चाहिए। मैं तो समझता हूँ जानवरों पे बननी चाहिए, बहुत ज्यादा जानवरों पे बननी चाहिए। हमको जानवरों से बहुत सीख लेने की जरूरत है, और जानवरों पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनी भी है। मैं तो डिस्कवरी चैनल में 10 साल काट चुका हूँ। तो हमको जानवर से इतनी ज्यादा, मतलब अगर हम डिसिप्लिन समझना चाहते हैं और एक जिसको कहते हैं ऑर्डरली वे ऑफ वर्किंग टुगेदर या टीम वर्क समझना चाहते हैं, तो हमको चींटियों का जीवन जानना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ मोहित। जी सर। सर एक आखिरी सवाल है। मैं जानता हूं कि अभी समय बहुत कम है, लेकिन आपने सारे एस्पेक्ट्स पे बात कर ली। आपने फिल्म मेकिंग पे बात कर ली, आइडिएशन पे बात कर ली, शॉर्ट्स पे भी बात कर ली। थोड़ा सा साउंड के बारे में भी अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें कि डायलॉग्स एंड साउंड और किस तरह से उसको हमें फिल्म के अंदर इंक्लूड करना चाहिए और किस तरह का हमें उसको डील करना चाहिए, थोड़ा सा आप उसमें भी अगर शेयर कर सकें अपना एक्सपीरियंस। जी जी, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा लंबा लेक्चर है, मतलब एक सारे दिन का मेरा एक लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ साउंड के ऊपर ही काम करते हैं। क्योंकि हम इसको ऑडियो विजुअल कह रहे हैं, इसमें ऑडियो पहले आ रहा है, विजुअल से भी पहले ऑडियो आ रहा है, और उसकी बड़ी महत्ता है। भगवान ने हमको एक नहीं 2 कान दिए हैं, दाएं और बाएं दोनों तरफ का सुनने के लिए। आंखें तो सामने की तरफ ही लगा दी हैं किसी वजह से, लेकिन कान उसने दिए कि इधर का और इधर का भी आपको है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, दोनों तरफ से हमको सुनने का वो है। लेकिन हम इसको जनरली बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, और साउंड डिज़ाइन की बातें बहुत होती हैं, बट जनरली हमारे वर्क में हम लोग सिर्फ एक चीज़ को शूट करते हैं और उसकी जो इंसिडेंटल साउंड है उस साउंड को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कोई बोल रहा है तो उसका डायलॉग रिकॉर्ड कर लो, मगर मुझे नहीं लगता, मैं समझ रहा हूँ कि इससे बहुत हम आधी कहानी बता पा रहे हैं। हम काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं अगर हम साउंड को यूज़ नहीं कर रहे। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर अगेन अगर हम सत्यजीत रे या कुरोसावा की पिक्चर देखेंगे तो उसमें वेदर का बहुत बड़ा रोल है जी सब फिल्म्स के अंदर। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें, अगर आपको पाथिर पंचाली की मैं बात करूं, और अगर जिन्होंने नहीं देखी उनको देखनी चाहिए, तब उनको लगे, तब वो शायद कनेक्ट कर पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। एक औरत है जिसकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब वो मृत प्राय है, शी इज़ ऑन दी, किसको कहते हैं, ऑन डेथ बेड, इतनी उसकी बुरी हालत है। और उस रात बहुत तेज़ बारिश पड़ती है। ये पाथिर पंचाली का सीन है, बहुत तेज़ बारिश पड़ती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। वो बहुत गरीब लोग हैं, एक झोंपड़ी में रहते हैं, और उस तेज़ आंधी से, रात की बात है, वो बच्ची अपनी माँ की गोद में लेटी हुई है, उसके सिर पे पट्टी है, उसको बहुत तेज़ बुखार है, और वो हवा जो है वो दरवाजे पे धक्के मार रही है, धड़ 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 धड़, और उसने एक ट्रंक से वो दरवाज़ा रोका हुआ है क्योंकि उसकी वो चिटकनी भी जा चुकी है। और एक पॉइंट पे वो दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा और सारा पानी उस बीमार बच्ची, जो शायद ठंड से या न्यूमोनिया से ऐसी किसी चीज़ से बीमार है, तो उस रात की का जो भयानापन है, भयावहता है, जो उसका माहौल है, वो ऑडियो से क्रिएट किया है रे ने। वो हवा का दरवाजे को धड़धड़ाना, बड़बड़ाना, और ऑफ कोर्स बिजली भी चमक रही है, वगैरह भी हो रहा है, मगर उस चिल्लाती हुई हवा को अगर हम हटा देंगे उस सीन से, तो वो सीन 50% रह जाएगा उसकी जो है। तो साउंड पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए और ज़्यादा हो नहीं रहा। लेकिन मैंने कुछ फिल्में मैं बता सकता हूँ कि अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि साउंड का बड़ा रोल है। अभी कुछ दिन पहले स्टार वॉर्स नाम की बड़ी, बहुत ही मतलब लेजेंडरी पिक्चर है, मैं उसको देख रहा था। तो उसमें जो डार्थ वादर नाम का कैरेक्टर है, उसमें हेलमेट पहने रहता है, तो हेलमेट से उसकी जो ब्रीदिंग है वो एम्पलीफाई हो जाती है। उसने ट्रैक पे वो यूज़ किया, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, विलेनस कैरेक्टर है।
तो उसकी ब्रीदिंग जो है वो उस हेलमेट में रेजोनेट कर रही है और वो पूरे ट्रैक पे उसने लगाई हुई है। तो वो जब आता है उस तरह से सांसें लेता हुआ तो वो एक भय पैदा करता है। ये सब फिल्म मेकर को इमेजिन करना है, तभी ये आगे बढ़ेगी बात। अगर आप सोचेंगे भाई डायलॉग बोल दे, हम डायलॉग रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये मीडियम हमको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है चीजों को यूज करने की। जी सर, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल बस कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री की बात करी, हम कोई भी फिल्म बनाते हैं, आपके अनुसार उसको मार्केट हम किस तरह से करें? क्योंकि आज की डेट में अपनी फिल्म को ज्यादातर ऑडियंस तक पहुंचाना और रीच बढ़ाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम अपनी फिल्म को मार्केट कर सकते हैं? ये डॉक्यूमेंट्री वालों के लिए तो बहुत ही टेढ़ा सवाल है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्री अच्छी तरह से मार्केट हो रही होती तो डॉक्यूमेंट्री की वो अवस्था नहीं होती जो अभी है, हमारे देश में भी है और दुनिया में भी है। लेकिन उसके साथ साथ फिर डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक और ये सब BBC भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को नेचुरली बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है, इसकी तो परवाह मुझे भी नहीं है और किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये ठीक काम कर रहे हैं। डिस्कवरी इज अ मॉडल विच इज फंडेड बाय सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो उनके पास सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है, लोग पैसा भी दे रहे हैं चैनल को देखने के लिए और ऐड भी चल रहे हैं उसके ऊपर, तो वहां से उनकी फंडिंग हो रही है और वो जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं वो बना रहे। इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को दिक्कत है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं अगर कोई इंडिपेंडेंट थॉट या आइडिया को लेकर के एक फिल्म बनाता हूँ तो मैं उसको कैसे बेचूं, कैसे देखूं। तो आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें इसका जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। ये जिसको हम मिपकॉम कह रहे हैं, जो फ्रांस के कैन शहर में साल में 2 बार होता है, एक मिपकॉम कहलाता है, एक मिप टीवी कहलाता है जी। वो एक मार्केट है इसी चीज के लिए, फिल्मों को खरीदने और बेचने के लिए, और वो इसको मतलब बहुत सालों से कर रहे हैं और बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के पास एक रास्ता तो ये है कि वो एक एजेंट को अपॉइंट करे। ये बहुत सारी कंपनीज हैं वो यही काम करती हैं, वो खरीदती बेचती हैं। तो वो एक तरफ से कांटेक्ट में है बायर्स के और एक तरफ से कांटेक्ट में है सेलर्स के। तो अगर आप उनकी मार्फत से जाते हैं तो उनके पास 100-200 बायर्स मौजूद हैं जिनको वो आपकी फिल्म दिखा सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, मिपकॉम में मैं एक व्यक्ति से मिला, वो पूरा डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता है क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर, दुनिया का कहीं का कोई भी क्लासिकल हो, फ्रेंच क्लासिकल हो, इंडियन क्लासिकल हो, कर्नाटक हो, कोई भी हो, और वो उसको खरीदता बेचता है। अभी कोई यहाँ बना के बैठा है इंडिया में, उसको दूरदर्शन के अलावा समझ नहीं आ रहा किसके पास में जाऊं। लेकिन आप ऐसा जाते हैं तो आपके पास एक पूरा, उसके पास कुछ करीब 40,000 नेटवर्क्स का कांटेक्ट है उसके पास। छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, पसंदीदा शौकीन लोगों के नेटवर्क्स हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहते हैं, उसके पैसे भी दे सकते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं ही। और ये जितने भी हमने मार्केट्स का नाम लिया, रियल डॉक है, ये सब इस मार्केटिंग के बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अगर ये समझे कि वो अपनी दम पे बेच लेगा तो वो बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं हो पाएगा। रोहित, एक सवाल मेरा भी है कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट पेपर्स पढ़ते हैं, 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, चाहे वो कैमरा के ऊपर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो फिल्म एप्रिसिएशन, उस तरह तमाम तरह के पेपर है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हमारा डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह के सब्जेक्ट्स को लेके और किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए? सर ये इसका एक जवाब तो है कि किसी भी हालत में उस सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं बनानी चाहिए जो आपके अंदर से उपजानी है। मैं इसका बड़ा कायल हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं है कहने को तो आपको कहना नहीं चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए। इसी तरह आपको अगर आप कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल भी फिल्म ना बनाएं उसके बारे में। लेकिन अंदर से अगर एक आवाज़ आती है कि मैं इस चीज़ के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आपको हर हालत में बनानी चाहिए, ज़रूर बनानी चाहिए। और आज की डेट में तो ये सबके पास है, ये तो सबके पास है। तो हम लोगों के ज़माने में तो कैमरा 1200 रुपए का आता है, 1200 रुपए कहाँ से आएंगे, 4 दिन कैमरा लें या 3 दिन कैमरा लें, ये सब सारी दिक्कतें अब काफ़ी हद तक तो दूर हो गई जी। और आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, आप अपने उसको एडिट कर सकते हैं और बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं। और इतने सारे फेस्टिवल्स आजकल मतलब हैं कि आप उन फिल्मों को वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये इसमें अब मुझे लगता है ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की बात है, और कोई अच्छा सा आइडिया आपको लगता है कि मुझे इस पर बनानी चाहिए तो ज़रूर बनानी चाहिए, और अपना सेल फोन उठा के लग जाना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से DSLR कैमरास भी काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा कैमरा है डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग के लिए। तो जी, थैंक यू जी सर। मोहित।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने पूरे वक्तव्य में डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अलावा लाइटिंग और शॉट्स, साउंड और किस तरह से मार्केट करना चाहिए, सारे सवालों के जवाब दिए और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना समय निकालकर हमारे सभी स्टूडेंट्स को बताया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग होती क्या है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अनुरोध करता हूं हमारी जो हेड हैं डीएमई मीडिया स्कूल की, डॉक्टर सुष्मिता वाला मैम, कि वो 2 शब्द कहें इस सेशन के बारे में। Thank you, Mohit. Actually, session is very interesting and informative. और मुझे लगता है कि सर ने जितना डॉक्यूमेंट्री के लिए बताया वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स, क्योंकि हम लोग बात भी यही करते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फैक्ट बेस होनी चाहिए। तो फैक्ट बेस अगर डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। और जितना सर ने बताया कि आपको किस तरह से बनानी है, किस तरह से आपका इमेजिनेशन से लेके आपको इम्प्लीमेंटेशन तक आपको कैसे उसको फॉलो करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने नोट्स भी लिए होंगे तो उन्होंने काफ़ी इसमें चीज़ें सीख ली होंगी और होप सो कि जो आगे काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सो थैंक यू पंकज सर आपके इस सेशन के लिए। और मुझे लगता है कि हमें आपको एक बार और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के लिए बुलाना होगा, तो प्लीज़ ज़रूर आप हमें मतलब शामिल हो जाइएगा जब भी हम आपको इनवाइट करें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह से आपने इनको इंटरेक्ट किया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग फॉर अस। Thank you very much, Sushmita ji, and thank you very much, Mohit ji, for your kind words. And finally, Dr. Amrish, thank you very much for calling me. Thank you. So thank you very much, and I would also like to thank first of all, Mr. Pankaj Saxena, then our Dean, Professor Dr. Amrish Saxena, our Head, Professor Dr. Susmita Bala, and especially Mr. Ritik Ghosh and Mr. Sumantra Sarthidas for providing all the support. Thank you very much, and thank you all the students and the faculty members as well. At Delhi Metropolitan Education DME, we have an excellent infrastructure. We have a studio for production which is known as Studio 62. It was inaugurated by Tigmanshu Dhulia, who is a noted filmmaker. And within the studio, we have so many facilities. We have a chroma setup, we have a news setup, we have a chat room setup. And since floor is splendid, we can shoot any kind of program. We also have a separate radio studio. And we have also organized Mega Film Festival SIFI and International Conference ICANN, and received lots of films and received lots of paper in that conference. For a college, the software is very important. In my college, the software comprises of 3 things. First is the teaching, second is the research, and third is the mentoring. With the help of these 3 softwares, we train a student in such a manner that placement is just a byproduct. One of the essential features of Law School at DME is its well-equipped moot court. Since its inception, DME has organized several moot court competitions and workshops just to enhance the mooting skills, which have been conducted under the distinguished guidance of various luminaries from bench, bar, and academics. Judicial Training Academy is the most shining feature of Delhi Metropolitan Education, Noida. We have a huge library to help out our students with more than 15,000 books, including Helsbury's Laws of England. DME has a very robust library infrastructure that not only caters to the curriculum needs of the students and the teachers, but also provides a great academic ambience. The library is equipped with latest books, journals, and other e-resources. At DME, we not only believe in academic excellence, but we also provide platform to students to showcase their talent through big open amphitheatre, beautiful auditorium, multi-purpose seminar hall, equipped with world-class facilities. Recently, we have conducted Cultural Fest Aloha in January 2020 and Anugunj, that is the Universal IP Fest, in February 2020.